Hello guys, we'll wait for 5 minutes more. Okay, and we'll start at 4:05. Yeah. Dress mark penny needle. મને મત પડાવ. So hello everyone. Before we start, यहाँ पे जितने लोग हैं सबने प्राइस एक्शन 1 किया है? कोई है ऐसा जिन्होंने नहीं किया है? ओके, क्योंकि अगर नहीं किया है तो आगे अगर कुछ नहीं समझे तो you'll have to go and revise it. So guys, I'll share my screen. Let me know once you can see the screen, okay? Everyone can see my screen? Yes, sir. Great. तो can anyone recap price action 1 में क्या पढ़ा था? सर सबसे पहले अपने स्टार्ट किया था कैंडल स्टिक के साथ, उसके बाद अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन उसके बाद
अपन ने ये वेज वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस किए थे. Okay. Anyone else? You also told about the myths which we have to be aware of Mm-hmm. in terms of the volume, the divergence, and candlesticks, whether it's forming in the right place or in the right context. Mm-hmm. Then, Yeah. Then as Himanshu said, the trend, support, resistance, the bars, how to identify which is a signal bar or whether we should initiate it in the right entry point or when we should take a stop loss. Mm. Then reversals, how to identify those reversals, inside bar, outside bar, multi-bar reversals. Good. Anyone? Anything else? Sir, we spoke about inertia, the market in the concept for inertia. That concept also we have studied in Correct. price action 1. Correct. So today in volume 2, we will, for how we'll start, we'll first cover a little bit of summary of volume 1. Okay, like what is price action, what are the bar types, inertia, context. Okay, then we'll start discussing about tight trading ranges. What are those? What does it mean? If you see one, how you have to trade. Okay, then we'll talk about weak setups. Okay, कहाँ पे सेटअप वीक है, ठीक है, जहाँ पे एंट्री फिर नहीं लेनी चाहिए. ओके, पुल बैक्स क्या होते हैं, बार काउंटिंग क्या होती है, गैप्स को कैसे ट्रीट करना है, दैट विल टॉक अबाउट. Most important will be this pullback, bar counting and gaps. Please focus on that part. That will be the thing which will help you make money in the market. Okay, and then we'll have a live trading practice session. Yeah, any questions, anyone? Everything clear? Buying or selling pressure. I couldn't hear you. Buying or selling pressure. क्या बोल रहे हो? Buying or selling pressure. Buying or वो तो last time अच्छा, ये buying selling pressure will cover in these things only. Buying selling pressure ऐसे just a concept which will cover. Yeah. Now a little bit about me. You all know I'm from Delhi, work in Shell. I'm passed out from IIT Dhanbad. All those things. ठीक है, चलो, doesn't matter. बहुत useless stuff. Now let's talk about price. So what is price action? कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अगर उसके प्राइस के मूवमेंट को हम एक चार्ट पे किसी एक टाइम फ्रेम में दिखाते हैं, दैट इज प्राइस एक्शन, दैट इज पोर्ट्रेयल ऑफ प्राइस मूवमेंट. और ये हमने लास्ट टाइम देखा था. दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स यू विल सी, बट ऑल आर सेम. सेकंड थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड इन प्राइस एक्शन वॉल्यूम 1 वाज बार टाइप्स. आई सेड कि जब भी व्हेन यू सी अ बार लाइक दिस, okay, this is a, don't consider it as a marbuja or something like that. Look at it as a combination of many small bars in a smaller time frame, and that's why you can consider this as a trend bar. Okay, so ये बार अगर डेली पे है तो मतलब 5 minute 1 hour पे you'll see something like this, right? So which means what, कि एक मार्केट एक ट्रेंड में है. So when you see this bar you just understand कि अच्छा this is the direction of trend, ये ट्रेंड है. ठीक है, सिमिलरली अगर रेड होगा तो डाउन ट्रेंड होगा, उसको यू कैन विजुअलाइज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड इफ यू सी समथिंग लाइक दिस यू ऑलवेज लुक एट इट एज अ doji, okay, or a sideways kind of a bar. Yeah, so that shows more like there is no decision making in market whether to be bullish or bearish. ठीक है, so this is how we think. Now we talked about myths and all कि volume पे ध्यान नहीं देना चाहिए, divergence पे all we talked about that. And then we talked about कि what are the things we should focus on. तो कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सारी थ्योरी एक तरफ, and unless and until you understand the context part you cannot make money in the market. फिर market trending है कि sideways है, again trending sideways depends on the context, and that's why context is very important. Support resistance, again that depends on time frame, and again context, and that's why context is the most important thing. So these are the things we have to focus on while trading. भाई कौन खाना बनाने लगा यार? पटर पटर.
Yeah, so these were the things we talked about. And then why context is important. Why it is important? Because market has something known as inertia. What is inertia? Can anyone explain that? Last time काफी discuss हुआ था ये. Anyone? So we keep doing the thing until unless external force अपने को वो काम करने से रोके ना. Definition नहीं बताओ, समझाओ. अच्छा. जो सर इनर्शिया ये होता है जो- कि जो मार्केट पहले कर रहा था इट टेंड टू डू जो ऑलरेडी कर रहा है. मतलब अगर एक पर्टिकुलर ट्रेंड पकड़ा हुआ है तो वो उसी ट्रेंड में जाएगा, वो मार्केट इनर्शिया, अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो अपोजिंग डायरेक्शन में हमें सिग्नल दे कि अब वो इनर्शिया खत्म हो सकता है. करेक्ट. सबको समझ आया? Anyone has confusion? इनर्शिया का मतलब ये हुआ कहने का, जैसे आपकी गाड़ी है, आप चला रहे हो 80 90 100 तक, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते हो वो नहीं रुकती है. क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि उसमें इनर्शिया है. सिमिलरली मार्केट में भी इनर्शिया होता है. कहने का मतलब ये है कि if market is doing something, now that something can be a trend, वो एक ट्रेंड में हो सकता है. that something can be a sideways day, जिस दिन मार्केट सिर्फ एक दो रेंजेस के बीच में हो. that something can be a breakout. yeah, whatever that is, market will continue to do that. मतलब कि हमेशा जैसे आपको कंसेप्ट आता है ना, लोग बोलते हैं यू शुड रिमेन विद द ट्रेंड. दैट इज नथिंग बट दैट इज इनर्शिया, इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. कि ट्रेंड में है तो ट्रेंड के साथ रहो, because market is inertia, so it will continue trending up. That is the thought process behind that. Yeah, so always markets have trend, and whenever you are taking a trade, just see what is the inertia of the market. Is it trending? Then you are you placing the trade in the direction of the trend? Is it sideways? If yes, then are you trading on the extremes or not? So that's how you decide what trade to take and where to take. ठीक है? किसी को कोई confusion? ठीक है, so we discussed this then. अब बात करते हैं टाइट ट्रेडिंग रेंज की. ओके, व्हाट इज द टाइट ट्रेडिंग रेंज? सो दिस इज वन एग्जांपल आई हैव शोन हियर. अब अगर प्राइस एक्शन वॉल्यूम 1 हमने किया था तो वी डिस्कस कैसे एंट्रीज लेने हैं. कोई मुझे बताएगा ये इसमें कहाँ कहाँ एंट्रीज हो सकती हैं? जब ऊपर जाए तो ऊपर की तरफ, और जब नीचे आए तो नीचे से लॉन्ग. बताओ कहाँ पे ले सकते हैं. ये कैंडल 1 हो गया, बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, कहाँ पे एंट्री लेना है फिर? जब ये नेक्स्ट कैंडल में नीचे आया रेड पॉइंट, तो यहाँ पे फिर हम इसमें जो है लॉन्ग एंटर कर सकते हैं. ये तो तुम्हें अभी चार्ट देख के पता है ना. रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे करोगे? यहाँ तो नीचे है तो रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए ना, और इसके नीचे तो ये कैंडल भी गया. सर जो दो ग्रीन कैंडल है ना, सेकंड ग्रीन कैंडल पे लेंगे जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई जाएगा. आगे आगे ये वाले पे. हाँ, जब इसका हाई जाएगा तब लेंगे ट्रेड. ओके, फिर एग्जिट कहाँ करोगे? सर सर रेड कैंडल बन गया, उसके लो पे ऐसे लगाएंगे. इसके नीचे गया तो हम गलत थे. इसके ये नीचे जो डॉजी बनी, ये हाँ, दो नहीं नहीं, इसका लो जैसे ही जाएगा वो अपना ऐसा रहेगा, क्योंकि फिर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा. है ना, इससे और आगे जाएंगे. वो जो एक वर्टिकल लाइट से कलर की बार दिख रही है, और कहाँ ऊपर, पर? हाँ यहाँ पे थोड़ी सी इससे पहले जिस टाइम पे ट्रेंड लाइन बन चुकी है, थोड़ी सी पहले, तो यहाँ पे हमारे दो नीचे और दो ऊपर जो है टच कर जाएंगे. जब ऊपर तीसरी वाली टच कर जाएगी तो ये हमें पता चल जाएगा कि एक चैनल बन गया है. फिर नेक्स्ट जब यहाँ पे इसके पास में आती है और ये डोजी जैसे बन जाती है, तो वहां से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं अप टू द लोअर लाइन. और देखो, जब लोअर लाइन पे आ जाती है तो फिर उसको ऊपर के लिए लॉन्ग कर सकते हैं. और इसमें कोई स्कैल्प किया जा सकता है सेल करके? तो स्कैल्पिंग ही हो सकती है इसके अंदर तो. आई थिंक ये जो चैनल को अगर हम ट्रेड करेंगे तो दिस विल बी स्कैल्पिंग ओनली. So see guys, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है. ये तब बोलते हैं जब कोई चैनल बहुत पतली हो. कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर स्कैल्प प्रॉफिटेबली नहीं कर सकते हो, दैट मोस्टली हैपेंस इन अ चैनल इन एन अपोजिट ट्रेंड. जैसे अब यहाँ पे देखो, किसी भी बार पे अगर जैसे ये सिग्नल बार मान लें, इस पे अगर हम यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, ये पहला हमारा डायरेक्शन में कैंडल है, एंड ऑब्वियसली विल नॉट एग्जिट हियर.
you will wait and ये green candle ऊपर चला गया and you will end up making loss. तो यहाँ पे कोई भी red candle पे if you short it or scalp, you will make loss. कभी भी tight trading range दिखे, the only thing that you have to think कि जो डायरेक्शन है उस ट्रेडिंग रेंज की, उस डायरेक्शन में पहले तो हमें ट्रेड लेना है, तो अगर ऊपर है तो बाई करना है, नीचे है तो सेल करना है, पहली चीज। एंट्री कहाँ लेनी है कोई मतलब नहीं है, एंट्री कहाँ लेनी है इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जिट नहीं लेना है जब तक वो ट्रेडिंग रेंज वायलेट ना हो, ठीक है। एंट्री तुम इसमें कहीं पर भी लोगे, यू विल बी प्रॉफिटेबल एनीवेयर, तुम किसी भी कैंडल पे इधर अगर इफ यू एंटर, you will be profitable at the end of the day. The only thing you have to keep in mind is that you have to exit only once the channel breaks, and that is you see a closing below this low of this channel. So that's how you have to trade trading ranges which are very tight. Okay, they always have this structure. अब ये होता क्या है, ये क्यों ऐसा है, कोई अगर हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये अगर 5 मिनट होगा तो हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या होगा, ये एक कंटिन्यूअस बुल बार होगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, बुल बार मतलब वी हैव टू लुक फॉर बाइंग ओनली, नो सेलिंग, ठीक है। एनी क्वेश्चंस गाइस हियर? सर ये चैनल जो है मतलब ये तो बनने के टाइम बनने के बाद पता चलेगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये टाइट ट्रेडिंग रेंज का डे है? तो पहली बार तो यू विल नेवर आइडेंटिफाई वंस यू सी दिस। जैसे ये दो बन गया, ये भूल जाओ, ये पूरा ऊपर तक भूल जाओ, मान लो ये जो है पहला, यू नीड 2 पॉइंट्स राइट फॉर ए स्ट्रेट लाइन, गॉट वन Yeah. हियर, गॉट वन हियर, गॉट वन हियर, गॉट वन हियर, सो नाउ यू नो इट इज टाइट, ओके। सो यू बाय एनीवेयर, कहीं पर भी, एंड द मोमेंट ये, ठीक है, वैसे obviously you'll have to And- see the never try to catch bottoms and tops, that is not the motive. if you try, देखो लोग रिवर्सल्स क्यों ज्यादा ढूंढते हैं मार्केट में, क्योंकि रिवर्सल्स आर समथिंग व्हिच allow you to catch tops and bottoms, पहली बात। दूसरा उसमें रिस्क कम होता है, and that is the reason people try to catch reversals all the time. But होता क्या है, मार्केट का इनर्शिया होता है, so market most of the times does what is been doing. Secondly, जब आप reversal trades and all लेते हो, your risk is less. So what if your risk is less, can you expect the reward to be more? Even if reward is more, then you have to sacrifice on the probability. पूरे मार्केट में traders equation एक चीज होती है which you will actually Ivy League colleges में when you have this course on trading and all, then this is taught in statistics. There is a trader equation made up of probability, risk and reward. If risk is low, reward is high, probability will always be less. When risk is low, reward is low, probability is median. When risk is high, reward is low, probability is maximum. Now you have to decide what is the type of trader you want to become. You want to become a trader who trades low risk, high reward, but low probability trades, or you are a trader who want to become like, okay, I am okay with high risk, low reward, but a high probability trade. That is a choice you have to make in the market. My style of trading is I work the probability. So for me, when I enter here, my SL is here, which is a high risk for me. अगली बारी अगर नीचे आ गया, I am making a big loss, right? But what I am gaining here by doing this, since my risk is high, my probability of success is very high. I have already seen that, okay, market is uptrending, market is in this tight channel, so my reward is very high. When I take an entry here, I am still not sure, so my probability is less. हो गया successful, but chances were very less. एक्सक्यूज मी बट आशुतोष, हमें वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये हमने चैनल वही पता चलने के लिए तो आपने ये 2 चैनल तक वेट किया ना, लेकिन वो तो उसका आपने आधा अपना टाइम ऑलरेडी निकल गया उसके लिए, जब तक हमें कोई बात नहीं, हमने प्रॉफिट तो बनाया ना, प्रॉफिट हमारा काफी निकल गया, फाइन, हाउ डज इट मैटर? मैं 10 ट्रेड करके 1 लाख बनाऊं और कोई बंदा एक एक ट्रेड में 1 लाख लूज कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज व्हाट यू आर ट्रेडिंग हियर फॉर ना. You are what are your trade out? Your trade out is that you are increasing your probability by increasing your risk. यहाँ पे लोगे और तुम्हारा स्टॉप लॉस बड़ा है, बट योर प्रोबेबिलिटी इज इवन मोर हाई कि एटलीस्ट यहाँ पे एंटर किया तो उसके ऊपर तो जाएगा ही.
So your probability goes up. And now obviously there is a probability of it failing. In that case, you will make a big loss. But most of the time, if you trade like this, you'll be making money, and that's why you have higher chances of being profitable. And secondly, when you're losing, you always size your positions. So when I buy here compared to when I'm buying here, my lot size here and here will be different. If I'm buying here, my risk is this much. So obviously I'll reduce my lot size to cover the risk while still having a greater chance of success. When I'm buying here, my probability is low and I'm risking the same. So it's better I increase my probability, and how I lower my risk depends on your sizing. You have to choose the correct size. But Ashutosh, my query was exactly that. अभी starting में first half में तो हमें पता ही नहीं ना, हम हाँ, तो हमारी नहीं पता है. जब उसका आधा हमारा चैनल बन चुका, उसके बाद में हम करेक्ट वहीं पे करना ही है. नहीं, लेकिन some people, like when you are trading, you have this visuals ना कि हाँ ठीक है अभी ये हुआ तो यही होगा, and hoping that people do take decisions. जैसे यहाँ इतना बड़ा कैंडल दिख गया, नीचे आ गया 2 बार, यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे भी रीजंस है. डबल बॉटम, बढ़िया ग्रीन कैंडल, फॉलो थ्रू, यहाँ पे भी आप ले सकते हो. नॉट बिकॉज इट इज अ चैनल, बिकॉज some other reason, right? सर आप अगर ट्रेड कर रहे होते आप यहाँ पे एंट्री कहाँ लेते? मैं तो यही लेता इसके ऊपर, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर. ठीक है, मतलब तब तक आपका वो 2 चैनल के 2 पॉइंट बन गए होते, फिर आप वो विजुअलाइज करते कि इस चैनल के अंदर में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो निकल जाए. करेक्ट. अभी देखो ग्रुप में जैसे कॉल्स आती है, आप देखो मोस्टली कॉल्स जो होती हैं हमारी, उसमें वो लेट होती है इन द ट्रेंड. दे आर नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड, अपार्ट फ्रॉम स्विंग ट्रेड्स. या इंट्राडे में यूजुअली यू विल सी आई नेवर ट्राई टू कैच द टॉप एंड बॉटम. इट्स ऑलवेज कैसा ट्रेंड बन गया, चलो. साइडवेज मार्केट है तो मोस्टली सेकंड हाफ में, क्योंकि पहला हाफ तो समझने में लग जाता है कि हाँ साइडवेज है कि नहीं है, राइट? करेक्ट. So that's how you have to trade. You always need to have a higher probability of success, because risk you can reduce by sizing your positions correctly. Probability, there is only one way, and that is by increasing your net risk per unit. That's the only way. So you reduce the per unit one more size. question. In a tight sorry एक No, टाइट ट्रेडिंग रेंज में मोस्टली मतलब आई एम आस्किंग यू, मेरे को एक वो आ रहा है दिमाग में थॉट कि यहाँ मोमेंटम मोस्टली मिसिंग होएगा, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग साइड या तो फ्यूचर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या तो कॉल या पुट सेल करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे मोमेंटम ऑब्वियसली मिसिंग होएगा, तो हमारा प्रीमियम ऑब्वियसली डिके होते जाएगा. नहीं, तो not विल इट बी necessarily बेटर यार. टू Not necessarily. मोमेंटम तो आपके स्लोप पे डिपेंड करता है. ये ऐसे ये सेम ट्रेडिंग ने थोड़ा उठा दो. अगर ये टाइम का तुम्हारा एक्सेस है तो सेम टाइम में ज्यादा गेन, तो यू कैन ऑलवेज बाय कॉल एंड पुट. दैट डिपेंड्स ऑन स्लोप एंटायरली. मतलब दैट इज द रीजन. हाँ, दैट इज द रीजन समटाइम्स आई गिव यू गाइस कि हाँ नहीं इसमें फ्यूचर्स सेल करो या बाय करो, कभी आई गिव यू ऑप्शन. दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्लोप. क्योंकि मॉर्निंग से इंट्राडे ट्रेडिंग में if I'm buying an option, I have to have a slope which is really, in the direction of my trend. स्टीप. Yeah, very steep slope I want always. अगर slope फ्यूचर से तो रिस्क और बढ़ जाएगा. फ्यूचर से तो फिर स्लोप स्टीप ना हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए. राइट सर, वरना ऑप्शंस इज बेटर. रिस्क, क्योंकि आप कह रहे हो रिस्क ज्यादा लेना है हमको प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और पर यूनिट रिस्क लेकिन हमें रिड्यूस करना है, तो ऑप्शंस वुड बी बेटर देन फ्यूचर्स इन दिस केस. When slope is higher, options are always better. You can very quickly make very good amount of money. चलो, तो ये समझ आया टाइट ट्रेडिंग रेंजेस कैसे दिखते हैं, कैसे ट्रेड करना है. करेक्ट. इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्कैल्प मत करना अपोजिट डायरेक्शन में. If you are taking 2 scalping trades and both are failing in market, ever, if it happens to you, the same instrument, you took 2 scalping trades in opposite direction, expecting a reversal, and if it hit your SL, please note that will be mostly a tight trading range, and you should then understand कि नहीं भाई अब मुझे long जाना चाहिए. Don't trade again and again, and don't do again and again the same thing which is losing you money. ठीक है?
क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। अब देखो वीक सेटअप्स का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन, लाइक उसको क्या फील होता है, वीक सेटअप का क्या मतलब हुआ? रेंज बाउंड सेटअप। नहीं, कोई और? सी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सेटअप, एक सेटअप होता है, उसमें एक आपका एक सिग्नल बार होता है, फिर एक एंट्री बार होता है, दोनों मिलके एक सेटअप बनता है, राइट? सेटअप मतलब कि क्या कंटेक्स्ट है मार्केट में, ठीक है, द फुल पिक्चर इज द सेटअप। सो वीक सेटअप का मतलब क्या हुआ कि सेटअप में देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गुड, but it is not a complete setup. For example, like if you see, this is clearly a sideways market, right? Now यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और ये कैंडल अगर आपने इसके ऊपर डाला होता कि इसके ऊपर जाकर खरीदेंगे, you would have entered it here. But setup is very nice, ट्रेंड भी ऊपर है, but what is missing in this? The context. The context right now is कि जब भी इस पॉइंट के आसपास जाता है मार्केट गिर रहा है, जब भी इस पॉइंट के आसपास जा रहा है मार्केट गिर रहा है। तो हियर एवरीथिंग इज राइट, बट वन थिंग विच इज नॉट सपोर्टिंग इज द कंटेक्स्ट। अगर ये हिस्सा चार्ट का, ये जो आप ये व्हाइट डॉटेड लाइन देख रहे हो, अगर मैं इसको हटा दूं, गायब कर दूं, तो यहाँ पे एंट्री लेना इज परफेक्टली राइट। बट व्हेन आई सी दिस हिस्सा, आई सी कह रहे ये तो यहाँ पे बार बार सेल ऑफ हो रहा है। सो दो कैंडल इज गुड, सिग्नल कैंडल इज गुड, यहाँ पे एंट्री भी है, ठीक है, ये ट्रेंड भी सही है, but still, since it is a weak setup because the context was not right, see the trade failed. If anything, you will look to sell here, not buy. If anything, you will look to buy here. अब ये देखो कैंडल कितनी अच्छी है, ये कैंडल भी थोड़ी नीचे गई है, but even after that, it will be a buy. ठीक है, और ये पूरी पिक्चर नहीं है, if you'll see, ये आपका पूरा एक सपोर्ट रीजन था, ठीक है। तो वीक सेटअप का मतलब, अब जैसे ट्रेंडिंग मार्केट आप हो, कभी भी आप ट्रेंड में देखो कोई मार्केट को, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू सर्टेन एग्जांपल्स। अब जैसे देखो, ये बैंक निफ्टी का ही देख लो, ये बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट है, तो देख रहे हो इसमें ये कैंडल कितनी अच्छी बनी है। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अरे अब ये तो रिवर्सल हो गया, बाय कर लेते हैं, बट देन इट इज अ वीक सेटअप, द ट्रेंड इज डाउन, ठीक है। Though this candle is good, but it is not a setup where you like to go long. फिर देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बनी है, पूरा ट्रेंड लो है। अब ये 1 2 3 में आपका बस पुल बैक है, बट काफी लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारा हो गया रिवर्सल, अब यहाँ से अब ऊपर जाना है, लॉन्ग लेके बैठे हैं, इस पुल बैक पे भी लॉन्ग ले रहे हैं, ठीक है। सो you always have to give importance to the context of the market. What is market doing? Always look to your left. किसी भी पॉइंट के यहाँ पे क्या करना है, पहले लेफ्ट में देखो, हर कैंडल पे यहाँ साफ लिखा हुआ है कि भाई, और दिस वाज अ ट्रेड विद कॉट, राइट? अभी यही ट्रेड हमने दिया था, 40,000 समथिंग पे हमने बैंक निफ्टी सेल किया था। नाउ यू सी, ये रिवर्सल हुआ आपका 41,700 पे। मैंने आपको 41,700 पे नहीं बोला कि सेल कर दो, आई वेटेड बिकॉज ये ट्रेंड क्या है, अप है। आई वेटेड, आई डिड नॉट जस्ट सेल इट राइट अवे, आई वेटेड कि भाई लेट्स सी क्या बन रहा है। जब ट्रेंड बना, नीचे आया, तो यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म होने के बाद इस कैंडल के आसपास, अब मैंने आप लोगों को दिया था ट्रेड, ये 40,700 के आसपास, ये जब ब्रेक हुआ था सपोर्ट इस कैंडल पे, ठीक है। दिस कैंडल आई गिव यू गाइस ट्रेड एंड देन वी मेड सो मच मनी। मार्केट यहाँ तक आया एंड वी केप्ट बैंक निफ्टी, वी मेड ऑलमोस्ट 4,000 3,000 समथिंग पॉइंट इन बैंक निफ्टी। सो you need to have patience, wait, unless there is a clarity, don't take trade, don't have this fear of missing out कि भाई ट्रेड मिस हो जाएगा। नहीं मिस होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, जब क्लियर हो तब ट्रेड लो, रिस्क बड़ा है साइज कम रखो, यू विल मेक मनी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? किसी को कोई सवाल, कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? No, sir. गुड।
आशुतोष, मुझे एक चीज पूछनी थी, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट टू दिस टॉपिक, इट इज दैट टू फॉर द एडवांस्ड कोर्स, सो आई विल बी हैविंग अ वर्ड ऑन दिस आफ्टर द सेशन. No worries, sir. You can do right away. If you want to wait, you can wait. You can ask me on chat. Up to you. Totally fine. Okay. ठीक है. So week setup समझ में आया, guys? Anyone was saying something? यस, मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे सपोज कभी हम फ्यूचर बाय करने के लिए बोलते हैं, उस टाइम पे ऑप्शन लेने में हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि मोमेंटम हमें मिलेगा या नहीं, तो बजाय हम उसकी सपोज ट्रेंड हम अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कॉल ऊपर की तरफ लेने के बजाय हम उसकी पुट अगर मान लो शॉर्ट करते हैं और दैट टू इन स्प्रेड, तो विल इट बी मींस beneficial as compared to the buying call, or So it will again, what you are doing there when you are selling a put, yes, instead of buying a call option, what essentially you are doing here? see, suppose my view is long towards the market, and rather than going for buying a call, so there might be some. I understood that, sir. I'm asking you, by doing that, what are you trying to achieve? Like, what are you doing here? I'm trying to achieve that in case if the market stays there. Okay, let me answer that for you. What you are trying to do is reduce your risk further down, right? Yes. So Correct. Sideways market. Correct. So when you reduce the risk, what happens? Whenever you reduce the risk, okay, your reward also reduces. Okay, so that is a perfectly fine trade. You can take, but होगा क्या, आप अब सेल करने में जैसे आपका मार्जिन ज्यादा लगता है, करेक्ट, राइट? आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा क्योंकि आपने एक स्प्रेड बनाया है, उसमें एक लेग होगा जो लॉस में भी रहेगा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है that might be limited or less. So that is a perfectly fine trade. You can take that. It all, sir, like I said, it all depends on risk reward. If you are a type of trader who further wants to reduce your risk at cost of reducing some profits, totally fine, take that trade. I prefer to buy option if I feel that it's going up and I believe in reverse pyramiding. So in case, if I am getting it correctly, you mean to say that in case if the market we are expecting to go up, but still it can be sideways, then buying call as well as selling put is the same. I'll be getting the same thing. No, I'm saying if a market is going up steeply, like the momentum is really good, okay, in that case I'll prefer buying a call option. In the other case, where if I see market going up but the momentum is not so good, okay, the steepness or the slope is less, in that case I'll prefer selling an option or maybe buying a future. So for me, buying a future and selling an option is almost same thing. And in fact, that's the even your margins are very similar for buying and selling. Yeah. But in case if I'm going through put, selling a put along with this spread, so that will be beneficial as correct. Yeah, it will be beneficial. See, as compared to, you cannot say, because there the reward is also more. If the market goes up endlessly, your profit will be limited if you are creating a hedged position. But as someone who has taken extra risk, naked position, his profit will be infinite. So it's about risk and reward. It's not about comparison. It's about what type of trader you are, what is your trading appetite, your risk appetite, and that's how it is. It's perfectly fine. Thanks. Anyone else? Any questions, doubts? So again, few more examples like here. If you see, you can clearly see market sold off here, market sold off here, okay, market sold off again here. Now after ये sell off के बाद क्या हुआ, मार्केट ने वापस ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेंड है, तो आपको लगेगा कि ये सेटअप तो काफी अच्छा है. But then again, you have to see the context. Context is clearly telling जब भी market is near these levels, it is selling off. So if anything, you will look to sell here, not buy. Yeah. So that's the example of a weak setup. You can say these are the kind of examples. Wrong candles forming at wrong places. Okay. Anyone in the similar case over here? Again, you see all the reversal candles. अब ये candle देख रहे हो, इस candle red के ऊपर close हुई है, so strong. So you will feel like अरे 1 2 3 हो गया है, चलो I'll look to buy. But no, it's such a strong trend. Why you look to buy? ठीक है?
Clear, guys? Any questions? Remember these things, guys. These are very important things, and these are very small things which get overlooked but make a lot of difference. ठीक है, अब पुल बैक की बात करते हैं. पुल बैक क्या होता है? एनीवन? It's a retracement after this a long uptrend or after this impulse wave. Correct. Anyone else? सर जो भी ट्रेंड होता है उसमें एंट्री का चांस के लिए मतलब वी गेट अ चांस टू एंटर. मतलब द प्राइमरी ट्रेंड पुल बैक इज अ रिट्रेसमेंट अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड. करेक्ट. हाँ, तो कोई भी आपका एक ट्रेंड हो, पुल बैक इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड, एंड सिंस इट इज अ पुल बैक इट मींस इट हैज टू बी स्मॉलर देन द मेजर ट्रेंड, राइट? अगर मेजर ट्रेंड से बड़ा हो गया तो फिर तो मेजर ट्रेंड ही पुल बैक हो जाएगा ना बड़े ट्रेंड का. सो पुल बैक विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द ट्रेंड. ठीक है, सो डोंट गेट एवर कंफ्यूज. अगर देखे दूसरा बार अगर तुम बड़ा दिखे तो समझ जाओ ये पुल बैक नहीं है भाई, ये ट्रेंड है, एंड देन यू हैव टू चेंज योर व्यू इन द मार्केट एंड यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन इन दैट केस. ठीक है, सो पुल बैक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे पुल बैक यहाँ पे किसे बोलेंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है. जब भी कोई कैंडल, करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर चली जाएगी वो पुल बैक होता है. सो दिस इज अ पुल बैक है, दिस इज द फर्स्ट पुल बैक. ठीक है, यूजुअली 2 पुल बैक के बाद हमेशा मार्केट थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देता है. ठीक है, ऑलवेज, बिकॉज 2 के बाद क्या होता है, 1 2 3 हो गया तो काफी जनता ये सोचती है कि ये किसी ऐसे इधर किसी ट्रेंड का ये पुल बैक रहा होगा, इट माइट गो अप. फिर यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट भी होता है ऊपर ले जाने का उसी बिलीफ के साथ. तो दैट इज द रीजन मोस्टली सेकेंड पुल बैक के बाद मार्केट यूजुअली shows a little bit of sideways movement rather than directly continuing the trend. ठीक है, सिमिलरली अप ट्रेंड में आपका क्या होगा, पुल बैक. ये आपका पुल बैक होगा. ठीक है, ये अप ट्रेंड है, इसका ये पुल बैक क्यों है, क्योंकि the low of this current candle is below the low of previous candle. ठीक है, so this opposite of it. Now पुल बैक तो समझ गया. पुल बैक्स का यूज क्या है, क्या यूज होता है पुल बैक का? सर पुल बैक के बाद जब प्राइमरी ट्रेंड में हमें कैंडल मिले तो इट गिव्स अस अ चांस टू एंटर. करेक्ट. और क्या यूज होता है पुल बैक्स का? Can be used for scalping. Low risk entry. Okay, anyone else? Adding positions. Yeah, adding or removing. Yeah, correct. See, like everyone mentioned, pullback is a place where you look to get into the trend. Yeah. Now, when you look to get into a trend, that means you have already identified the trend. Yeah. So you've already identified the trend, you have entered it. Now, risk के बारे में आप नहीं बोल सकते हो कि you enter at a low risk. It depends actually which pullback you enter. If you enter this pullback, your risk is this. You enter this pullback, still your risk is this. Okay. You enter this pullback, then your risk is this. So now ये थोड़ा confusing किसी को लगा ये जो मैंने अभी बोला कि यहाँ पर मैंने क्यों बोला एसएल ये होगा, यहाँ पे भी मैंने बोला एसएल ये है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि एसएल ये होगा. एनीवन? सर क्योंकि उसके बाद वो आपका लोअर हाई बन गया ना. तो लोअर मतलब हाई आपका ये तो ये भी बन रहा है ना, लोअर हाई. नहीं नहीं, जैसे आप ट्रेंड जहां से शुरू हुआ उसको हम ऐसा लेंगे. ओके, एनीवन एल्स? सर वो वहां पे आपका जो पुलबैक था उसके अगेंस्ट नीचे आ गया ना, सो इट शुड नॉट आइडली ब्रीच दैट. अगर वो ब्रीच कर दिया तो इट कैन बी अ पॉसिबल रिवर्सल. देखो मतलब सबका अपना अपना तरीका वैसे ठीक ही है, बट हाउ आई कंसिडर इज लाइक आई सेड, मेरा 2 पुल बैक तक मैं उसको एक मेजर लेग मानता हूँ. So this is one leg for me, this is one correction, this is second leg for me. If you see, this is on a higher time frame, 1 2 3 again. So each small pullback I considered as one leg, 2 small pullback at one leg, and I shift my trailing SLs like this. So जो आप लोगों में trailing SL देता हूँ उसका लॉजिक आज मैं समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से. So if I
ये पहला पुल बैक दिखा मुझे, देन आई लुक टू सेल हियर, राइट? माय एसएल इज हियर, आई हैव सोल्ड इट। ये ग्रीन दिखा, आई विल बी वेटिंग विद द सेम एसएल, ऊपर गया ऊपर गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है, वेज काइंड ऑफ है आपका पुल बैक फ्लैग। फिर यहाँ से वापस अब ये गिरा, ठीक है, ये 1 2 3 होने के बाद ये वापस गिरा, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ जब पहुंचा तो ये मेरा एक लेग हो गया है, 2 पुल बैक हो गए, माइनर यहाँ पे दूसरे के बाद आया, 2 पुल बैक हो गए। अब ये इस लेग का पहला मैं मानता हूँ, और इसलिए फिर यहाँ पे जब मैं कहाँ पे एसएल रखूंगा, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर मेरा एसएल है, ठीक है। फिर ये 2 लेग खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी आया मेरा एसएल, क्या है, यहीं पे है, रखा है रखा है। ये ब्रेक हुआ, अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कर दूंगा अपना एसएल यहाँ। तो यहाँ मैंने अब एसएल शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे वाई ट्रेड की। सो दिस इज हाउ आई ट्रेल, सो दैट्स हाउ आई यूज पुल बैक्स टू ट्रेल, कीप माई स्टॉप लॉसेस, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? बट हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं इस चीज में, देखो, इफ आई एम ट्रेडिंग इन ऑप्शंस आई डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स सो rigorously. When I'm trading futures, then yes, I do follow all these things rigorously. लेकिन जैसे मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, अब ऑप्शन जो है ना 10 रुपए का यहाँ 12 हुआ, अब वो ये पुल बैक अगर 50% ऑलमोस्ट देखो है, वो 12 से वापस ना 9 भी हो सकता है, क्योंकि टाइम भी जा रहा है। तो ऑप्शन के केस में इतना एक लेग खत्म हुआ, आधा निकालने का, तुरंत कॉस्ट पे ट्रेल करने का, फिर रखने का, उसमें फिर आई डोंट कीप वेटिंग कि यहाँ तक आ गया उसके बाद भी आई एम वेटिंग। जैसे ये 1 2 हुआ, इक्वल लेग मेजर किया, मेरा टारगेट आ गया यहाँ कहीं, खत्म हुआ ऑप्शन में, आधा निकालो, आधा ट्रेल करो, कॉस्ट पे रखो। फ्यूचर्स है, आई स्टिल कीप होल्डिंग विद द सेम एसएल, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ये नोट कर लो यार फिर ये सब, क्योंकि मैं पीडीएफ में नहीं डाला है, इसीलिए क्लास इज इम्पोर्टेंट। फिर अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेड ले रहे होते, तो फिर आपको पता है मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो जो आपको फर्स्ट पुल बैक ग्रीन कैंडल दिखी ऊपर, वहां जो पे मैं रिजेक्शन लेता, कैंडल, करेक्ट वहां पे उसका जैसे लो जाता आप ट्रेड ले लेते, राइट? करेक्ट। अब मेरा टारगेट क्या होता, जितना ये लेग है उतना ही फिर यहाँ से वही यहीं कहीं आता हुआ आसपास, वो इक्वल लेग। पॉसिबली इंट्राडे का टारगेट होता है, अगर स्विंग होता तो करेक्ट, फिर आप जो भी बता रहे नहीं तो फिर अब स्विंग का मैं वेट नहीं करता हूँ, आई टोल्ड यू ना, एवरी ट्रेड दैट आई स्टार्ट इट इज ऑलवेज एन इंट्राडे ट्रेड, इट बिकम्स अ स्विंग ट्रेड और नॉट, टोटली डिपेंड्स कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है कि नहीं। ओके, सो ठीक है, आई बाई, अगर मान लो अब जैसे इस केस में क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे जब बाई किया एसएल हिट नहीं हुआ, अब ये चल रहा है एसएल यहाँ पे है, अभी भी एसएल यहाँ पे है, नहीं हिट हुआ, यहाँ से फिर गिरा, नहीं हिट हुआ, दिन खत्म, निकल जाओ, इंट्राडे खत्म। अब यहाँ पे तुम यू हैव टू मेक अ डिसीजन, इफ यू आर ओके विद द प्रॉफिट, कैरी इट। सो मोस्टली अगर मेरा ये फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड लिया होता, आई वुड हैव कैरीड इट, ओके। बट अगर मैंने ऑप्शन में ट्रेड लिया, आई विल नॉट रिस्क इट, आई डेफिनेटली बुक इट। So you carry it with a hedge. या अगर फ्यूचर्स So आप होता है यहाँ तब, पे फ्यूचर में क्या hedge करते हैं, कैसे hedge करते हैं? तो ये गिर रहा है तो शॉर्ट किया है, कॉल बाई कर लो, या तो अगर एंड ऑफ एक्सपायरी है तो बाइंग कॉल विल मेक मोर सेंस बिकॉज प्रीमियम कम होगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी, इन दैट केस सेल अ पुट ऑप्शन आउट ऑफ मनी, फिर नीचे का और दूर का पुट ऑप्शन आउट ऑफ मनी सेल करो अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ है। ये सब एडवांस कोर्स में बताया, पढ़ो, ठीक है। ये समझ में आया? एनी क्वेरीज? सर सर सेकंड पुल बैक मतलब वो 4 ग्रीन कैंडल है उसको बड़ी जो अटेम्प्ट रेड देखो ना, कैंडल बनी अटेम्प्ट उसका है ब्रेक करने के बाद ये देखो, अटेम्प्ट देखो, बस वो सब भी भूल जाओ कि इसके ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। अटेम्प्ट देखो, ये नीचे जा रहा है, ये पहला अटेम्प्ट है बुल्स के लिए से, राइट? हाँ। तो ये फर्स्ट पुल बैक, बुल्स हार गए, फिर ये दूसरा अटेम्प्ट किया बुल्स ने यहाँ पे। अब यहाँ तो ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पुल बैक नहीं, दिस इज एन इम्प्लाइड पुल बैक। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो जरूर यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल होगा जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होगा। सो फॉरगेट अबाउट ये इसके ऊपर जा रहा नहीं जा रहा है। देखो, एक डेफिनेशन होता है और एक किताबी ज्ञान और एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रैक्टिकल ज्ञान ये है, पहला अटेम्प्ट पहला पुल बैक, दूसरा अटेम्प्ट रिवर्स करने का ट्रेंड, सेकंड पुल बैक। क्लियर? ठीक है। एंड एनीवन, एनी क्वेश्चंस?
Ashutosh, you said कि अगर options buy किए होंगे तो you don't really wait for SLs, आप बुक करते जाते हो जैसे targets Correct, achieve correct, होते हैं. correct. But अगर options sell किया रहेगा तो you can actually wait on Yeah, SLs. then I can wait, definitely. But then Okay. I'll definitely cut my selling. Why would I, if I see such a trend, why will I sell an option and sit here? हाँ, I'll नहीं buy makes an option. There is no right, right. point selling an option and, like हाँ, risking so much, putting so much money and then getting chutia type right, returns. fair enough. Yeah. ठीक है? Anyway, so ये समझ गया. अब बताओ पुलबैक्स कितने टाइप के होते हैं. पुलबैक्स में टाइप से मतलब कि हाउ डू दे लुक. ओके, अब जैसे प्रीवियस चार्ट में ही जाओ आप. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक आपका पुल बैक है. ये मोस्टली स्मॉल टाइम फ्रेम में देखो जिगजैग पुल बैक है. ये आपका देखो एक पुल बैक है 1 2 3 करके. बट ये कैसा सा पुल बैक है? ये मोस्टली आपका वेज, राइजिंग वेज में पुल बैक है. ठीक है, फिर ये भी देखो, ये भी एक आपका एक राइजिंग वेज में पुल बैक है. 3 तरह के मोस्टली पुल बैक्स होते हैं. एक आपका जो होता है एबीसी, उसमें आप यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, या मेजर्ड मूव बोला जाता है. उसमें क्या होता है, 1 2 3 में जो पुल बैक होता है, जैसे इसको मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 में हमेशा थर्ड लेग विल बी इक्वल टू द फर्स्ट लेग. सो एबीसी टाइप ऑफ पुल बैक इसमें इस एग्जांपल में नहीं है. वी कैन सी इट इन द चार्ट. खोल लेते हैं, दिख जाएगा. लाइक सी दिस इज एन एबीसी काइंड ऑफ पुल बैक, एबीसी. अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, अब इसमें जैसे स्कैल्प करना कैसे कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है एबीसी टाइप का यहाँ पे बन रहा है, ये पुल बैक है. इसके ऊपर जैसे ही गया, आई नो नाउ एबीसी बनना शुरू हो गया. दिस इज माय एंट्री कैंडल. सो व्हाट विल बी माय, बढ़िया यहाँ पे आराम से बैंक निफ्टी है. देखा कि यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ 41,166, मिनिमम मेरा टारगेट 41,300, 150 पॉइंट है. 10,000 क्वांटिटी बैठ के फटाक से खरीद लूंगा मैं. एक तो पुल बैक है, मतलब इट विल बी स्मॉल. एबीसी में है मतलब इट विल बी क्विक. ठीक है, 1 2 3 करके टारगेट मिल गया. मुझे पता है स्कैल्प करना है, 10,000 क्वांटिटी खरीदा, जैसे यहाँ पहुंचे सारा निकालो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ट्रेड एंड दीज आर द ट्रेड्स आई गिव यू गाइस. ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yeah, any questions, anyone, any doubts? यस, डाउट ये है कि अगर मान लो ये इसमें जो है अपना बी लेवल से ही डायरेक्टली नीचे चला गया तो तो लॉस उस तक हमारा एसएल उसमें रहेगा. यहाँ पे मैं बाई करूंगा, ये मेरा एसएल रखूंगा. ठीक है, 1 2 3 है तो ऊपर ये इसको वायलेट नहीं करना चाहिए, राइट. सो इसके नीचे मैं एसएल रख के यहाँ पे बाई कर लूंगा. सर ऊपर भी तो एक ग्रीन सॉर्ट ऑफ पुल बैक कैंडल थी. कहाँ पर? तो इसके ऊपर बिफोर, हाँ एग्जैक्टली. हाँ, तो इसके ऊपर गया नहीं ना, सिग्नल कैंडल बनी, लेकिन उसके ऊपर कहाँ गया? यहाँ पे तो गया ना. ये ग्रीन सिग्नल कैंडल है और इस वाले नहीं, कैंडल पे अपनी सिग्नल कैंडल बनी तो है जो पूरी खिंची है, जिसकी लंबी विक है. ये बोल रहे हो? हाँ, दैट इज अ सिग्नल कैंडल. तो ये तो फर्स्ट पुल बैक ही हुआ ना तुम्हारा. 1 2 3 बना क्या? 1 बना ना, ये 1 तो 2 आप और 3 तो आया ही नहीं सी ना. या 3, अच्छा सी या 3 पे ट्रेड करना चाहोगे? करेक्ट. अभी देखो, अभी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं है भाई मेरे. जवाब मिलेगा सवालों का. देखो, जो तुम्हारा एबीसी टाइप ऑफ पुल बैक होता है, ठीक है, वो पुल बैक इक्वल लेग होता है. ठीक है, वो अगर दिख जाए तो हमेशा यू शुड टेक अ स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड. ठीक है, अगर तुम्हारा पुल बैक एबीसी बना ही नहीं, then it is a very small pullback and then it will immediately change in the direction of trend. So अगर ABC फेल हो रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि मेरा जो pullback है उसमें ABC नहीं बन रहा है, ठीक है, वो फेल हो रहा है, then it means कि now the trend has already begun in the same direction as it was and you should now look to enter. फिर एक फ्लैट पुलबैक होता है, इलियट वेव कंसेप्ट वाला है, जो कि हमने पीछे जो मैं वेज बोल रहा था उसको फ्लैट भी बोल सकते हो. 1 2 3, ठीक है, ये इलियट वेव कंसेप्ट से आता है. वेज बोलो फ्लैट बोलो तुम्हारे ऊपर है. ये भी 1 2 3, ठीक है. तो दिस इज अनदर. इसमें क्या होता है, अब ऐसा अगर पुल बैक बनना है तो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड कि फ्लैट टाइप का अगर पुल बैक बन रहा है मतलब इट विल बी मोस्टली साइडवेज. सो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, आई विल बी लुकिंग टू, अगर ये रेंज बड़ी है इस पुल बैक की, देन इन दैट केस आई विल बी लुकिंग टू सेल. एक मिनट रुक जाओ यार गाइस.
हाँ राहुल बोल। हाँ बोल बोल। क्या हुआ? हाँ मैं आऊंगा, मैं वो तो लेना ही है ना। करे नहीं नहीं नहीं, दूसरा सामान। हाँ ठीक है, आऊंगा मैं। हाँ, ठीक है। अगर बारिश नहीं हुई, हाँ हाँ, बारिश नहीं हुई तो डिनर करते हैं। बारिश होती है तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है गाइस। सो जब भी मुझे पता है कि फ्लैट टाइप का पुल बैक हो रहा है, इन दैट केस refrain from buying options. Only ABC type of pullback if you see, then in that case you know यही मेरा टारगेट है। ठीक है, and those are quick, fast, then you take an option in opposite direction ट्रेंड के स्कैल्प करने के लिए। उसके अलावा चाहे आपका ये बने या कभी कभी ट्रायंगल भी बनता है। ट्रायंगल का एग्जांपल अगर उसमें होगा मैं दिखाता हूँ आगे। ठीक है। फिर जो आपका 1 2 3 है, ठीक है, वो आपका बनता है मोस्टली सेकंड के आसपास। और सेकंड थर्ड पुल बैक से आपका शुरू हो जाता है मोस्टली ये फ्लैट। मतलब आपका जो फर्स्ट पुल बैक होता है दैट इज यूजुअली स्मॉलर, दैट इज मोस्टली द पुल बैक यू शुड ट्राई टू गेट इन बिकॉज दैट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। yeah, because that will be 1 2 3 of some other small pullback. Okay. सेकेंड पुल बैक जो आपका आता है मोस्टली वो एबीसी के फेस में होता है, 1 2 3 के फेस में, उसमें आप स्कैल्प कर सकते हो इन डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रेंड। ठीक है, थर्ड फोर्थ जो पुल बैक होता है इट इज मोस्टली फ्लैट, वेज और ट्रायंगल। ठीक है, सो दोज आर लाइक वेरी मच sideways and lack momentum, so don't try and scalp with an option in those kind of setups. ठीक है, clear guys? Any questions on the pullback part? तो मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे आप कह रहे हो कि ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एबीसी वाला है या फ्लैट है, वो जो आपने अभी कहा उस बेसिस पे, क्योंकि सेकंड Correct, पुल बैक है, थर्ड पुल बैक है, तो correct. उस फिर वो ही See, एक तरीका है। these are just guidance. 60-70% of time that this is ऑफ how it कोर्स, हाँ is. हाँ। Okay. But हाँ, like I said, पहला pullback most identify तो यार एबीसी तो सबसे सिंपल है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे ही एक लेग बना उसका, वो एक तरह से आपको एक, क्योंकि वो एबीसी कब बनता है यूजुअली जब आपका एक ट्रेंड के अपोजिट जो आपका पुल बैक आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, तो एबीसी बनता है। हम्म, अगर जो आपका पुल बैक हाँ एक्सटेंड लंबा होने लगता है कि हाँ मतलब इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो मोस्टली आपका ट्रायंगल बनेगा, आपका फ्लैट बनेगा। ठीक है, या आपका वेज बनेगा, क्योंकि इट इज टेकिंग टाइम। एंड फ्लैट वेज एंड हम्म, ऑल कब बनता है? व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन इन द मार्केट, नो वन is deciding, not one side is deciding what to do. Both हम्म, sides are equal. That's when you get there. And since those are sideways, don't try and buy options. Always trade in futures. In fact, you should avoid such pullback because they are very small and they are usually very tight. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम ही है ना, क्योंकि हम ट्रेंड के Correct, अगेंस्ट जा रहे हैं। correct. ओनली एबीसी टाइप मिले तो स्कैल्प कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा ट्रेंड में भी उल्टा खरीद के बन जाता है, स्पेशली ऑन डे ऑफ एक्सपायरी। अगर ट्रेंडिंग डे मिल गया एक्सपायरी के दिन तो भाई उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक साइड रखे रहने का, दूसरा साइड पुल बैक पे बार बार स्कैल्प करने का। एनीवे, एनी क्वेश्चन गाइस ऑन दिस? चलो बार काउंटिंग की बात करते हैं। बार काउंटिंग इज जस्ट जनरली व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस। कभी भी कोई ट्रेंड होगा ना, इन जनरल उसमें उसका जो पुल बैक आता है उसके पुल बैक में आपको मैक्स 2 से 3 लेग मिलते हैं। अब ये समझाएं कैसे आपको हम? लेट मी शो यू। व्हाइट पेपर आता था ना। Wait, guys.
Let me know guys when you can see my screen whiteboard. Can you guys see whiteboard? Yes, sir. Yeah. देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये अगर ये तुम्हारा ट्रेंड है, ये पुल बैक है, ठीक है, फिर ये एक ट्रेंड वापस रिज्यूम हो गई। अब देखो 2 तक तो ठीक है। The moment you start seeing 3rd and 4th, boss, that is the time it means it is not a pullback. You should start looking for a possibility that this has become a reversal. Getting my point? जैसे यहाँ पे देखो 1 2 खत्म। But the moment you start seeing 3 and 4, you should start preparing with the idea that this might be a legitimate reversal and there is no point now getting long. Now, will you enter here? No. एंट्री कहाँ पे होगी? ये जो प्रीवियस स्विंग लो था, इस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ही एंट्री होगी। तो अब जब यहाँ पे 4 हो गए, यू विल वेट, यू विल नॉट गो शॉर्ट। अब या तो ये डायरेक्टली नीचे चला जाए, ब्रेकआउट दे दे एंड यू एंटर देयर, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका फिर इधर हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये वापस यहाँ से ऊपर गया कुछ, अब जो लोग सोच रहे थे पुल बैक, वो यहाँ पे वापस लॉन्ग गए, ठीक है, एक डबल टॉप बनाए एंड देन वापस गया। जैसे ही डबल टॉप बने, देन यू डोंट नीड टू वेट फॉर दिस ब्रेक। उस केस में फिर जैसे ही आपको ये फर्स्ट पुल बैक मिले, sell it for at least the minimum target of this. If it breaks, you keep the target lower. If it doesn't break, this target is done. You make money, be happy. समझ में आया? फिर इसमें जब आप वो उसकी बात कर रहे हो कि ऊपर गया फर्स्ट टाइम, फिर छोटा पुल बैक आया और फिर से ऊपर गया, तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो उसके पहले मार्केट गिरा होगा। See, don't mix time frames. अभी यहाँ पे मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ तो इंट्राडे ट्रेड ही तो ले रहा हूँ ना। तो आप कह रहे हो कि आपने इंट्राडे में देखा कि आपको पहले 1-2 घंटे में अच्छा मूव मिला, तो फिर आपने वेट किया, पुल बैक आया और तब आपने ट्रेड लिया। करेक्ट। तो आप सिर्फ आप इंट्राडे कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड कर रहे हो। करेक्ट। अब जैसे हमने अभी है, people here they can tell you, we shorted market at 4700 bank nifty, we booked it. Okay, yesterday's trade was a long trade in bank nifty and we made money there. So, but yesterday's trade, did we carry? No, we did not. Okay, that was an intraday trade. Yeah, because the major trend is downward. So when I was trading on the downside, I carried the trades. But since this is a pullback, I took a trade because obviously इतना गिरा है तो pullback भी 50% भी अगर मान के चलो तो 1500 पॉइंट का तो है, 1000 पॉइंट आ गया, made money, ठीक है। But will I carry it? No. When will I carry it? अगर वो 1500 पॉइंट और ऊपर जाके प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाए, मतलब यहाँ से ऊपर चला जाए and I get a good follow through, I'll carry it. वो तो फिर कॉन्टेक्स्ट की बात होगी ना। करेक्ट। ऐसे केस में will I'll not carry it, ठीक है। ठीक है। So you have to prepare yourself, seeing the price action, what is the type of trade you are going to take and how long are you planning to keep it. Trading is just like a profession, guys. How much money, how much risk, for how long, all these things matter. Even one equation, if it is wrong, you'll not make money. A trade which should be cut in an intraday, if you carry it as a swing trade, it will end up making you a beggar. Similarly, a trade which you need to keep as a swing trade, if you just keep exiting it, you'll not make enough money. ठीक है, ये समझ आएगा? इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन? सर इसका अगर चार्ट्स के साथ में इसका एक एग्जांपल और मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छे से करेंगे वो हम लाइव ट्रेडिंग में, तो ये सब ही करेंगे यार, यही सब काम ही करना है, ठीक है। चलो ये सब पढ़ लेना, ये हम लाइव ट्रेडिंग अभी करेंगे, उसमें देखेंगे। फिर गैप्स देखो क्या होता है। अब देखो मेरा तरीका जो गैप्स देखने का है वो थोड़ा अलग है। आई लुक एज गैप्स एज इनविजिबल ट्रेंड। सर आपका वाइट स्क्रीन है अभी, वाइट स्क्रीन है अभी। अच्छा अभी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। Let me know if you can see now. Yeah.
सर दिख रहा है? चलो, तो देखो अब ये देखो, ये जैसे गैप है, बट आई डोंट लुक दिस एज अ गैप. फॉर मी इट इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ बार लाइक दिस. सो आई लुक गैप्स एज अ ट्रेंड बार. सो देन हाउ विल आई ट्रेड? सिंस इट इज अ ट्रेंड बार, the next candle जो कि ये candle है, if it is open, it is going below this, I'll go ahead and sell. At the same time अगर मान लो ये मेरा यहाँ पे ये ट्रेंड बार था, बट यहाँ पे मुझे अब एक ग्रीन दिख जाता, क्या मैं सेल करता? नहीं, मैं वेट करता. मैं देखता कि ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जा रहा है या नहीं. प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया, आई वुड हैव देन बॉट इट फॉर अ टारगेट हियर. प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं गया, देन आई वुड हैव सोल्ड इट देयर फॉर रिवर्सल. ठीक है, so I treat gaps, I'll just put an imaginary bar there, and then it becomes then there are no gaps, it's normal simple price action like it was. अब जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको चैनल भी दिख रहा है, टाइट ट्रेडिंग रेंज. यहाँ पे सिर्फ सेल करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, so this is how I would like you all to visualize gaps, and we'll see more examples. Any questions, anyone? आशुतोष, अभी तो इसके अंदर जो है ना, इसमें क्या किया, नीचे गया और इसने इसको ब्रेक करके नीचे जाना शुरू किया. बट कई बार क्या होता है, जैसे गैप डाउन खुलता है उसके बाद एकदम से फिर ऊपर की तरफ वो जाना शुरू करता है. करेक्ट. तो यहाँ पे सोचो, अगर आप यहाँ पे अगर ये गैप डाउन हुआ यहाँ पे और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो हाउ विल यू लुक? You look like a green candle over here, no? Then in that case you don't sell. You wait for first candle to close after a gap down or a gap up, and then see how those candles, is it a continuation of trend or is it a reversal? ठीक है, we'll see with more examples anyway. किसी को कोई सवाल? चलो, स्टॉप लॉस गैप के ऊपर होगा, जस्ट ऊपर, या मॉर्निंग ट्रेड है ना, तुरंत जस्ट उसके ऊपर. If it reverses, I don't want to end up losing all the money. So here I will prefer having a low probability, low risk setup. I'm okay because it is morning, and that is why the probability is low, and that's why I'll buy in a small quantity. If I buy a put option here, I'll buy a small quantity of put option because my probability of success is very less. ठीक है? So can anyone summarize? Wait for a closing? So closing की wait Yes, करेंगे yes. 5 minutes. पहला 5 मिनट वेट करो, because you want to see if there is a, this is kind of a breakout candle, right? ये आपका जो range है इसका, ये breakout candle है. This is a candle, this is a breakout candle of this tight trading range. So you want to see if that breakout is continuing or not. अगर यहाँ पे green candle आ जाता तो मतलब बढ़िया follow through नहीं है breakout का, तुरंत reverse हो गया. In that case what? You would have been looking to go long, right? जस्ट क्योंकि आपने वेट किया 5 मिनट कैंडल, ये जैसे ये देखो यहाँ गैप था, ठीक है, ये पहला कैंडल आया आपका, अब आप रेडी हो यहाँ पे शॉर्ट लेने के लिए. जैसे ही इसके नीचे जाएगा यू विल गो शॉर्ट, बट इसके नीचे गया ही नहीं, क्या हुआ? नेक्स्ट में रिवर्सल, बच गया आप. So that is why it is very important to first identify a signal candle and then an entry candle. This is the signal candle which gave you an entry for short, but then there wasn't any entry candle and then you got saved from a wrong trade. यहाँ पे क्या हुआ? Signal candle red, waited for an entry, you got an entry here. It was a right trade. ठीक है? ठीक है. ठीक है. So can anyone summarize what, like if you have to take a trade, एक आदमी को बताओ मुझे कि, चलो एक एक करके बताओ, what is the first step? ट्रेड लेने से पहले सबसे पहली चीज क्या देखना है हमें? Trend identification. Can you come again, sir? Trend identification. Okay. ठीक है. Everyone is okay with that fact? Yes. Correct. So सबसे पहले हम चार्ट पे हमें ये देखना है कि ट्रेंड क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है?
नहीं समझ आ रहा है तो नहीं करेंगे, वेट करेंगे। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है। जितने लोग यहाँ पे है या नॉर्मली जो इंसान ट्रेडिंग करता है, मैं इतना तो मानता ही हूँ, कॉमन सेंस होता है कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो अगर वो नहीं समझ आ रहा है, मतलब वो मोस्टली साइडवेज है। एंड स्टिल इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट, जस्ट गो मोर टू द लेफ्ट, और पीछे जाने का, to get an idea whether it is a trending market or non-trending. So that is the first step. What is the second step? Once you have identified trend, what we have to do? We'll wait for a pullback. Anyone else? Look for an entry point. Okay, so how will you decide that entry point? Depending on the candles, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं कैंडल्स। Okay. Anyone else? देखो, ये सेकंड स्टेप ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू टेक नॉट ओनली जस्ट a decision where to enter. Your just one decision of where to enter decides a lot of things for you. First thing that you have decided is that the market is trending or not trending. If it is trending, you decide the trend, bull or bear. If it is bullish, then you go long. If it is bearish, you go short. Now, where to get short when you, that is the most important decision. और जब आप वहां पे जाते हो, आप बहुत सारे डिसीजंस करते हो। अब जैसे ये चार्ट है, इसमें आप कहीं भी शॉर्ट कर लो, यू विल मेक मनी, बट नॉट एवरीवन हु वुड हैव शॉर्टेड एनीवेयर वुड हैव मेड मनी, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगर मैंने यहाँ शॉर्ट किया तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर कहीं है, कितना क्वांटिटी रखना है, क्या वो क्वांटिटी में रिस्क एपेटाइट में, इफ आई शॉर्ट इट हियर start of the day, late in the trend, almost like 1 2 3, should I keep the same quantity or not? Okay, so entering actually decides a lot of things, and you have to be very mindful of this situation. This is the most important decision you make. And once you enter, don't shift your SL or change your view. Have faith. यहाँ पे लेने के बाद मेरा SL ये है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वापस यहाँ तक पहुंचा तो मेरे फटली और मैं निकल गया, नहीं। ये तुम्हें पहले से सोच के रखना है कि भाई मैंने SL यहाँ पे रखा हुआ है, क्या मैं ऑप्शन खरीदूंगा तो आई कैन बेयर दिस मच ऑफ SL? द आंसर इज नो, ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड देन लुक एट द क्वांटिटी यू वांट टू ट्रेड इन, बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ आई एम कंफर्टेबल विद दिस SL। तभी जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तुम्हारी फटेगी नहीं तो औकात से ज्यादा लोगे, यहाँ पे फट लेगी, निकल लोगे, वापस ये पूरा पैसा खो दोगे। ठीक है, so this is how you have to trade, and this is also most important thing in trading is being able to manage your trades, being able to understand the risk, your real risk, not what you have in mind कि अरे मैं तो कर लूंगा। Your real risk basis your financial situation, what it is, basis that only you should decide on how much you should trade, what quantity and what is the amount of risk you can take. Don't be blinded by मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। कई लोग क्या करते हैं, 10 लाख का लोन लेके अकाउंट डाल दिया, मेरा 10 लाख है अकाउंट में बैलेंस, मेरा रिस्क तो कितना रहना चाहिए, 10 लाख का 1% है। भाई चूती, वो 10 लाख लोन का है, तो ऑलरेडी उस पर 10% 12% दे रहा है, तेरा रिस्क 1% का भी नहीं है, माइनस में है तेरा। You cannot risk anything, and that is why you should never trade on loan money ever. चलो guys, कुछ अब examples लेते हैं, and then we try to apply all these things, okay, in real market and see if you all are able to take it. So बताओ कौन सा index उठाएं, stock उठाएं? Anyone stock index you want? जो बोलोगे उस पे कर लेंगे। बैंक निफ्टी करो। बैंक निफ्टी कर ले, ठीक है। चलो कोई एक रैंडम डेट डालते हैं। कौन सा महीना उठाएगा इस 4 महीने तक? कोई भी महीना बताओ, उससे ज्यादा तो टिक्स नहीं आएंगे। टेल मी विच मंथ, विच डेट शुड आई पिक? जुलाई कर लेते हैं। कौन सा डेट उठा लें?
एनीथिंग? मिड में कोई सा भी ले लो, चलो अभी पीपीटी पर ही है स्क्रीन। हाँ आएगी आएगी। Hold on. आ रही है अभी? आगे आगे तो ये हम पहुंच गए जुलाई में। कहाँ पे है भाई जुलाई में? ये रहा जुलाई में, हम पहुंच गए आपके 12 जुलाई पे। ठीक है, ये आपका चार्ट है। अब लेट्स आस्क पीपल, ये 12 तारीख की मॉर्निंग स्टार्ट हुई ट्रेडिंग, व्हाट शुड बी योर व्यू? क्या करना चाहिए? बायस तो बुलिश है। तो व्हाट विल यू डू हियर? यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ तक अभी है मार्केट, व्हाट इज योर डिसीजन? डू यू वांट टू एंटर हियर? इफ एंटर, डू यू वांट टू टेक लॉन्ग शॉर्ट? एनीवन? Wait for next candle. व्हाई? डोजी टाइप तो ये भी तो बोल सकते हो, ये 1 है डाउन ट्रेंड, ये 1 2 3 हो गया, साइडवेज करेक्शन, फ्लैट करेक्शन एंड वापस ट्रेंड रिजम्पशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक और कैंडल का, चलो तुमने बोला, देखते हैं अब क्या करेंगे। अभी कोई डिसीजन आया क्या करना चाहिए? आई थिंक लॉन्ग जाना चाहिए यहाँ से। व्यू क्या है, कहाँ पे लॉन्ग जाओगे, कहाँ पे शॉर्ट जाओगे? तो इसी, ये जो करंट कैंडल है इसी पर ही हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो एक्चुअली नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अच्छा, और कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे तो? ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज करता है तो वो स्टॉप लॉस। ये ट्रेंड लाइन, जो ये माइक्रो ट्रेंड लाइन होगा, ये आप बोल रहे हो? इसको और नीचे तक ले आते हैं हम ट्रेंड लाइन को। अच्छा, आप ये बोल रहे हो? हाँ। ओके, एनीवन एल्स? क्या ये एंट्री सही है? तो एक फ्लैट पुल बैक टाइप भी तो हो सकता है, अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ऊपर से एक बार नीचे की तरफ आया है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोई क्लैरिटी है नहीं अभी। भाई देखो, now I'll say what, and can anyone give me one view where he will like to enter? What will happen then he will enter a long trade? What will happen then he will enter a short trade? Can anyone tell me here? एक विजुअलाइजेशन जब तक नहीं रहेगा मार्केट का, you cannot trade. I will go short on if candle closes below the first green candle, that 9:15 candle. Okay, then you will go short. Yes. Okay, and why is that? Because overall market bias is going down, and it is closing below the first candle. It is closing below the first candle, and it is the green candle. So close enough. See, yeah. See, this is how you have to think first. First, it's not like कि हर कैंडल पे हमें ये डिसीजन नहीं लेना है कि क्या करना है, लॉन्ग शॉर्ट. It's not about just the candle. You also need to know where. Like he said very clearly, yes, the first thought is I'll go short only if it goes below day low. ठीक है? Why? Reason. ये before it is in an uptrend. Okay, this is in an uptrend. ये pull back हो सकता है. If it goes below this, ये previous swing low है. Previous swing low के मतलब नीचे अगर चला जाएगा तो क्या होगा? It will be a breakout. If it goes below this, it becomes a breakout. And then I will look to take a short if I see a follow through in breakout. So अभी हमें breakout मिल गया. breakout की theory क्या है कि breakout में जब follow through मिले, that's when you take a trade. दूसरा मेरा व्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कंटिन्यू करे ऊपर, यहाँ जाए. अब यहाँ पे ये दो चीजें करेगा, या तो ये ब्रेकआउट देगा एंड इफ आई सी ए फॉलो थ्रू इट इज एन अप ट्रेंड, आई विल बाय. ठीक है. दूसरा ये है कि यहाँ पे जाएगा, डबल टॉप बना के गिर जाएगा.
तो डबल टॉप बना तो सिग्नल कैंडल जो होगा हमारा, उसके बाद एंट्री कैंडल पे आई एंटर. So this is my game plan. I'll sell here, I'll sell at double top, I'll buy at the breakout. Yes, you can also buy here because it is in an uptrend. Your risk is low. So you can buy here. But I am not that trader. I prefer having a higher probability setup. The only problem buying here is that yes, risk is low, but the probability of success is very less. If I keep my SL just below this, high chance next candle में ही वो बंद हो जाए. I don't want to get stopped out. I want to have a better probability trade, and that's what I will do then. So this is how you have to think, and that's how you have to take trade. Now let's see what happens. Because many people will go short here. अब देखो, ये breakout candle मिला, अब इसके नीचे I will look to sell. मेरा target क्या होगा? अब ये बन जाएगा ABC. तो इसके नीचे जाएगा तो आई विल सेल. मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा ये 35-60. ठीक है, नॉट ए गुड फॉलो थ्रू. ब्रेकआउट कैंडल, नो फॉलो थ्रू, मेरा ट्रेड आया ही नहीं. आई डिडंट एंटर. बट नाउ अब यहाँ पे थिंकिंग क्या है? एनीवन? व्हाट इज गोइंग इन योर हेड नाउ? यहाँ पे आपका ट्रेड जो आपने सोचा था, ये ब्रेकआउट तो हुआ बट फॉलो थ्रू आया नहीं, आप तो ट्रेड ले ही नहीं पाए. तो अभी आपने क्या सोचा? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या चीजें क्लियर है, क्या नहीं क्लियर है, किस चीज का वेट कर रहे हैं हम? तो ऐसा लग रहा है इसने सपोर्ट ले लिया यहाँ से प्रीवियस डे के लो से. तो आपका प्लान क्या है? व्हाट इज योर प्लान देन? होना चाहिए तो लो को अपना जो है ऐसा रख के. क्या बोल रहे हो आप? इसी पॉइंट से लॉन्ग जाने का प्लान होना चाहिए और लो रख के, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है. अच्छा, ये इसका लो हम एसएल रख के लॉन्ग जाएंगे, आप बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि पहले भी इस दिन जो है ना, गॉट इट. यहाँ पर एनीवन एल्स? ये पुल बैक हो सकता है तो हो सकता है ये जस्ट. हाँ, तो उसके लो के नीचे हम लोग एंटर कर सकते हैं. नहीं, शॉर्ट अभी भी कर सकते हैं, बट लो ऑफ द फर्स्ट वो कंफर्मेशन कैंडल जो है ग्रीन रेड वाला, इसके नीचे. ओके, हाँ. एंड वेयर विल बी योर एसएल? वो स्विंग हाई पे रहना चाहिए आइडियली. सो अपना ये जो जहाँ से फिबोनाची स्टार्ट किया है वो वहाँ, यहाँ से आप बोल रहे हो. ओके, एनीवन एल्स? ये रेंज में अभी भी विल वेट अंटिल ए रेंज ब्रेकआउट. So see, first thing, यहाँ पे long नहीं लेना है. Okay, whoever said that, no, sorry, you will not take long here. Okay, there is already a test of the extreme, test of the previous low, and this is not such a good reversal candle. Okay, secondly, your risk is very less. Your probability would be very low. Very less chances it will go again up. When will that probability increase? Only if it starts going above this. Okay, until unless it breaches this previous swing low, it will not, there is no point of taking long. So my view is always short in here. Only that my entry in short will be below this, because then this whole thing can become a big 1 2 3 जिसमें ये एक छोटा 1 2 3 होगा. So let's see now होता क्या. So now this is the candle I look to go long now, short now. फिर आपका क्या हुआ? यहाँ पे सिग्नल नहीं आया. आपका सिग्नल कैंडल आया, एंट्री नहीं आया. अभी भी आपको एंट्री नहीं मिली. अब इसमें क्या चल रहा है? ये पहला अटेम्प्ट नीचे जाने का, दूसरा अटेम्प्ट, ये आपका पुल बैक में आपका ये चल रहा है, वेज टाइप का आपका पुल बैक चल रहा है. ये इस शॉर्ट डाउन ट्रेंड का ये एक वेज पुल बैक है. लेट्स सी नाउ व्हाट्स हैपनिंग. अब यहाँ पे हमारा हो गया एक अटेम्प्ट नीचे आने का, 2 अटेम्प्ट, एक थर्ड अटेम्प्ट, बस. अब वो थर्ड अटेम्प्ट या तो नीचे जाएगा और या उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि वेज जो होता है हमेशा उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं. कीप नोटिंग दीज पॉइंट्स. 3
हो गया। अब यहाँ पे लाइक आई सेड या तो ऊपर जाना या नीचे जाना। अब ये ऊपर गया, अब ये आपका एक तरह से सिग्नल कैंडल हो जाता अगर ये इसके ऊपर जाता। अब ये इसके ऊपर गया नहीं है, तो देयर इज नो ब्रेकआउट येट, सो आई एम स्टिल होल्डिंग माय गन्स, नो ट्रेड हैज बीन टेकन। करेक्ट, नाउ दिस इज द कैंडल वेयर यू गॉट योर एंट्री। अब यहाँ पे क्लोज राइट एट द बॉटम, लुक टू गो शॉर्ट। नाउ आई एम शॉर्ट, my target is done. What will I do here? I'll book half, trail rest to my cost. ठीक है, ऑप्शन होगा कॉस्ट पे, ऑप्शन ही फ्यूचर हुआ तो यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली अब ऐसे में लाइक आई सेड एबीसी में मोस्टली आई टेक ऑप्शन। ऑप्शन हुआ कॉस्ट पे, फ्यूचर हुआ यहाँ पे। लेट्स सी, अब ये क्या एक तरह से गैप क्या है ये, यहाँ पे ग्रीन कैंडल इमेजिन करो, इसके ऊपर ये आपका ऊपर क्लोजिंग हुआ, looks like a pullback of this complete downtrend, but this also this is over. 1 2 3 is done, so there is a high risk in taking a short now because the major trend was up. ये 1 2 3 हो गया, टारगेट हमारा कल ही हो गया, there is no point taking a long here. So अब 13 तारीख को जो मार्केट यहाँ खुला, यहाँ पे आपको कोई लॉन्ग नहीं लेना है अब, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो येट कि लॉन्ग ले सकते हैं या शॉर्ट। नीचे अगर एक और रेड कैंडल आ जाती तो हमें पता है पुल बैक हो गया, देन आई लुक टू गो शॉर्ट फर्दर। बट ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, गैप जो है हमारा, उसके ऊपर ये क्लोजिंग हुई है, सो आई विल नॉट लुक टू गो शॉर्ट, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट गो लॉन्ग राइट अवे बिकॉज दिस होल थिंग कैन स्टिल बिकम ए बिग 1 2 एंड देन 3। सो आई विल वेट एंड सी क्या होता है। 13 तारीख को अभी वेट करते हैं। Too many red candles. Now you see too many red candles, but only this was the candle which broke. अब ये एक तरह से क्या हुआ, पुल बैक, ये 1 2 3, ये पूरा आपका अभी उसी रेंज में है, यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो दिस होल थिंग कैन बी 1 2 and then 3 up, still there is no chance of taking a trade. Now here ये जो आपका बना, अब ये क्लोजिंग अगर नीचे दे देता ना, आई वुड हैव टेकन द ट्रेड। नाउ दिस इज माय वेरी गुड डाउन ट्रेंड जिसमें ये सेकंड पुल बैक है, इसके नीचे मेरा होगा सेल ऑर्डर। ठीक है, इसके नीचे हाँ मेरा होगा अब सेल ऑर्डर इस दिन का पहला ट्रेड। खत्म, आया, ये आया आप जाके आपका ट्रेड, फिर ऊपर क्लोजिंग। अब ये आपका चल रहा है वेज, यहाँ पे आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया, क्लोजिंग नीचे, यू आर शॉर्ट नाउ। वेरी नाइस कैंडल्स, नो पॉइंट चेंजिंग इट। अब ये फिर एक और पुल बैक आया, ये आपका पूरा, नाउ दिस यू गाइस कैन सी ना, ये पूरा ऐसा लग रहा है ये पहला लेग था, ये दूसरा, और ये दूसरे का 1 2 पहला लेग है ये। तो अभी स्टिल इसके नीचे इट विल व्हाट, इसके नीचे अब, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस या सो अभी इसके नीचे जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है लुक टू एग्जिट माय पोजीशन एंड बुक प्रॉफिट। करेक्ट, कंटिन्यू। अब ये क्या है आपका, ये 1 2 3, यहाँ पे आप निकल जाओ। You guys cannot see my screen? Yes, sir. Like Screen visible. For some people it is visible, for some it is not. Everyone can see the screen or not? यस चलो, I think it is yes. ठीक है, so now you have booked profit and you have exited. Okay, अब अगर फ्यूचर रहता तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, यहाँ पे, you would have still kept it, कंटिन्यू रखते उस केस में।
अब ये क्या बन रहा है, वेज बन रहा है आपको। अब यहाँ पे यू शुड ऑलरेडी नो कि ये वेज बन रहा है, 1 2 3 4, ये 5 और एक 6 भी बनाएगा फिर। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू विजुअलाइज कि क्या होगा। अब देखो वो नहीं आया, अब ये क्या हो गया, इंस्टेड आपका 1 2 3 में आपका करेक्शन हो गया ABC, फिर ये नीचे आ गया, कंटिन्यू बीइंग शॉर्ट हियर। Excuse me, sir. May I leave and join again? Actually, we need request from you. Up to you, yaar. So guys, see, this is how you have to trade. Again, यहाँ पे एक pullback आया green, ठीक है, again an opportunity to sell. Again, someone has not sold, you should go ahead, sell it there. See, you will be in profit. Don't worry, you will be in profit. This is how market works. This is inertia. All the green candles, every candle is a sell. Now again, what is happening? काफी गिर गया, ये 1 2 1 2 आपका क्या चल रहा है, सेकंड अटेम्प्ट, मैक्स 3 अटेम्प्ट के बाद अगर होता है, देन वी शुड लुक टू एग्जिट। You see, this is how you carry your trades. This is how you do your swing trades. This is how a trade which started as a intraday trade changes into a swing trade. Doesn't matter दिन change हो रहा है, क्या हो रहा है, keep holding. So guys, you are getting my point. How are you trading? Any, चलो कोई और उठाते हैं आप example. Any stock you want, we can check that also. इसमें आपको कोई डाउट लगा, कुछ समझ नहीं आया हो? 1 2 3 1 2 3 और कैसे थोड़ा कंफ्यूज है। Can't hear you, bro. So guys, any stock you want to see, we can check any stock also if you want. Anyone can give me any good liquid stock, we can go ahead. सर अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील। देखो अदानी पोर्ट उठाने कोई मतलब है नहीं, सबको पता है ऊपर ही जा रहा है। तो सर अभी नीचे आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। सब पुल बैक यार, अदानी पोर्ट आईटीसी पुल बैक। गो अहेड भाई। सन फार्मा, सन फार्मा, HDFC बैंक, HDFC बैंक इज बैंक निफ्टी यार। सन फार्मा देख सकते हैं। और कोई स्टॉक? सर आईटी का कोई ले लो, आईटी इतना करेक्ट हुआ है। आईटी भी छोड़ो, वो भी सबको पता है, सब गिरा ही है। कोई अननोन से स्टॉक उठाते हैं जो हम ज्यादा देखते नहीं, ठीक है। सन फार्मा भी हम देखते हैं। देखो ये ग्रासिम उठा लेते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एनी स्टॉक व्हिच एवरीवन फॉलोज। और इसमें कोई डेट उठाते हैं रैंडम, ठीक है। Now let's try and see what can we do in this particular stock, ठीक है। Let this day end, we'll start from next day. Now guys देखो, अगले पिछला दिन न्यू डे स्टार्ट होने से पहले आपके पास ये इतनी इन्फो है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? So if you have to trade this, how will you trade this? What is the information this chart is giving you? नीचे से बेस पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, अपना सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे इसके, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ओके, तो क्या मैसेज मिल रहा है आपको, ये तो बताओ आप मुझे। आपको ये देख के क्या लग रहा है? लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है, क्या करना है? आएंगे, अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। ओके, सो देखो अभी फॉर मी, देखो वन थिंग इज क्लियर, इज कि इट इज मेकिंग काइंड ऑफ लोअर
टॉप्स, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये लोअर बॉटम यहाँ बना है, बट दिस बॉटम इज नॉट अ लोअर बॉटम, so it seems like कि it's in a downtrend, but we are meeting at some point of support also, but one thing is clear, it is downtrend. तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम कि थोड़ा हम पीछे जाएंगे समझने के लिए कि क्या हो रहा है, and then we find it कि yes we are correct, this is a downtrend and it is very late in the trend. ये पूरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड जिसमें वी आर वेरी लेट अभी, राइट? काफी दिन से ये चल रहा है, सोचो 11 अप्रैल से चल रहा है, ये आज चल रहा है आपका 27, तो 2 हफ्तों से ये डाउन ट्रेंड में, मतलब वी आर वेरी लेट इन द ट्रेंड व्हेन दिस इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। फिर और क्या इन्फो मुझे मिल रही है, मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा हाँ मैंने देखा, पहले हमने छोटे में देखा था तभी हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो है सपोर्ट एरिया। व्हेन वी गो ऑन अ बिगर चार्ट, longer time frame, we find that yes, correct, what we suspected is right and there is a support area here, ठीक है। So what is the message that we have as of now? That it is in a downtrend but there is a support, ठीक है। अब ये जो डाउन ट्रेंड था थोड़ा और आपको अगर देखोगे आपको, क्योंकि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, एनीवन कैन आंसर दिस, क्यों हम ये सब काम कर रहे हैं? सर पता कैसे होगा कि ट्रेड प्लान क्या है इसके बिना? कंटेक्स्ट समझने के लिए हम कर रहे हैं ये जो हम ये पूरी मशक्कत कर रहे हैं, इट इज टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक में चल क्या रहा है अभी प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज हमें लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम सिर्फ इतने पे देखें तो इट इज लुकिंग लाइक अ साइडवेज, ओके। थोड़ा और लंबे में देखते हैं तो लिख रहा है डाउन ट्रेंड, थोड़ा और बड़े में देखते हो तो डाउन ट्रेंड। जब थोड़ा और बड़ा करते हैं देन वी फाइंड आउट कि अच्छा ये एक अप ट्रेंड है जिसका ये पुल बैक है, और ये इस अप ट्रेंड में एक मेजर स्विंग लो है प्रीवियस। मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्विंग लो जाता है दिस पार्ट, then we are in for a bigger drop. So first point that I will mark is कि भैया ये अगर जाता है तो मेरे को शॉर्ट लेना। तो सबसे पहली चीज तो ये मैंने समझ ली। दूसरा, अब ये डाउन ट्रेंड में नीचे आया डबल बॉटम, सो लुक्स लाइक नाउ कि ये पुल बैक इज नाउ कंप्लीट बिकॉज कंटेक्स्ट इज गुड, इट इज नियर सपोर्ट एरिया फ्रॉम विच इट हैज बाउंस बैक, डबल बॉटम है, ठीक है। यहाँ से ऊपर आया है ये, तो ये बढ़िया मुझे दिख रहा है कि ये रिवर्सल हो सकता है। बट नाउ अब यहाँ पे अब मैं इंट्राडे में क्या देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्लोज हुए हैं, ओपन भी हुए क्लोज भी हुए फर्स्ट कैंडल। नाउ आवर आइडिया इज कि वी विल गेट लॉन्ग, ओके। व्हेन विल वी गेट लॉन्ग? विल गेट लॉन्ग ओनली इफ देयर इज अ गुड फॉलो थ्रू कैंडल। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ना बैड फॉलो थ्रू। सो अब क्या हुआ कि कोशिश हुई बुल्स के द्वारा ऊपर जाने की, बट हुआ नहीं, नीचे आ गए। तो ये काइंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल क्लोजिंग ट्रायंगल टाइप का सेटअप दिख रहा है। सीम्स मोर लाइकली कि अब हम यहाँ तो मिनिमम आएंगे, मे बी उसके बाद भले ऊपर जाकर फिर इधर आए, फिर इधर जाए, फिर ब्रेकआउट नीचे या ऊपर करें, बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ यहाँ तो हम आ रहे हैं, ठीक है। रिस्क भी मेरा छोटा है, यहाँ पे लूंगा तो ये मेरा रिस्क रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर गया तो फिर ये पूरा 1 2 3 में ऊपर जाएगा, ठीक है। So now in this case I can put this as my SL. I can take a short trade if I see a follow through. So I'll look to take a short trade if I go below this. Yeah, I am short. These are just pullbacks. अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया, नीचे आया, पुल बैक हो गया। ये लुक्स लाइक 1 2, तो आई एम प्रिटी श्योर कि अब 3 यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, राइट। अगर ये देखो, ये आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, ये देख रहे हो 3 समवेयर क्लोजर टू दिस लेवल। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, वहीं पे है, करेक्ट। यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस भी पड़ा हुआ है एंड आई एम शॉर्ट। नाउ देखो 1 2 3 के हिसाब से इसको यहाँ पे जाना चाहिए। तो अब ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे को एक चीज समझनी चाहिए जो कि होती है कॉमन सेंस, जो लोग यूज नहीं करते हैं।
वो क्लास कोर्स करते हैं तो वो एकदम वो बात को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। अब 1 2 3 इक्वल लेग का मतलब ये नहीं है ना कि जरूरी नहीं है ना कि यहीं रुक जाए, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। मेरा एसएल यहाँ है, सो नाउ आई विल थिंक कि भाई अब इस एक दो पॉइंट के चुतियापे में आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड, सो आई विल नॉट, जो अभी तक मेरा एसएल सिस्टम में था, बिकॉज पहले मैंने सिस्टम में डाल के रखा था क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊं, बिकॉज इट विल बी 1 2 3 बिग अप मूव, आई डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क। नाउ आई डोंट वांट टू पुट इट इन द सिस्टम बिकॉज आई नो ऑलरेडी कि यहाँ तक तो आ ही सकता है, तो एक दो पॉइंट ऊपर हो गया तो भाई आई डोंट वांट टू मिस दैट। सेकेंडली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऊपर जाए, डबल टॉप बनाए और उसके बाद गिर जाए, इट्स स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। So these are some common sense things which you have to utilize and practice when you are trading, and no one can teach you that. But try and start thinking like this. Now let's see what I'm going to do. चलो डबल टॉप टाइप का बना तो हम अभी भी शॉर्ट है भाई। तो अब देखो वहां गया ऊपर, बट अब यहाँ पे मेरे को फटना नहीं है, अभी मुझे यहाँ पे बैठ के देखना है कि होता क्या है। If there is a breakout, do I see a follow through? Again, bad follow through. Now, this is a good follow through candle. This is where I will look to exit. This is where I will now look to exit because there is a good breakout, good follow through candle. So now I am no more short. Here I should actually look to now go long with my SL here because I've already taken a loss. Again, common sense. Ideally, I should have kept my SL here. This is the second trade of the day. I've already taken a loss. I cannot take much risk. I'm okay taking a low probability, low risk trade because if it works, it will recover all my loss. If I take a high probability, high risk trade, if it doesn't work, I am going to lose a lot of money the same day. I don't want to lose so much money on a single day. Since I've already lost second trade, I look to lower my risk. This is how you think. Now you can think differently, but this is how I think. And I am successful, so I think you should also think like this. So now I am long, my SL is there. Now guys see, अब ये candle जो है ना, this can give rise to 1 2 3 downwards. So now I have to change my SL, keep it here. So now my SL is above my cost. I will not be losing any money. Now let's pause it here. Because this whole thing looks like this was leg 1, this was hole 2, and now 3 is forming. So I need to know my target. How much am I playing for? So this was 1, this was 2. I have almost done my target. It is coinciding with the resistance area. What I'll do, I have already recovered what I lost. Earlier I entered here, I lost this much. Earlier I lost this much. Okay. Now I have gained. I've bought here on this signal candle. Already this much. Correct? You see, I've already in profit now net. Now here I will look to book half, trail rest to my cost. Let's see what happens. Now see a red candle forming near resistance zone. So it's a good context. So if I ever see a follow through on any of these red candles, I will exit. Like this is the candle where I exit. So my net profit booked, this still more than what I lost. But this is how you have to trade. When you are wrong, accept the mistake, go. And then all comes to your position sizing and the way you manage your trades, trail your assets, and you can easily make money in the market.
Any question, guys? Any queries? Now see, this is just like trading in the market. You don't know what is going to happen. I'm just following the process I have taught you. Any stock you tell, guys? Any other stock? कोई और बताओ, उठाते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं. Anyone? Any stock? जितना एग्जांपल करेंगे ये लास्ट एग्जांपल है. Anyone? चलो फिर खत्म करते हैं. और कोई जानना है कुछ और स्टॉक देखना है तो वी कैन pick up. Sir, how about the HDFC, not the bank one, the housing finance development? Again, it's the same, यार. Chart is also same. I don't remember these charts. मैं इसीलिए जानबूझ के HDFC and all नहीं उठा रहा क्योंकि मेरे को ये सब charts याद हैं. मुझे पता है कब क्या हुआ है. So फिर थोड़ा biasness आ जाती है. Anyway, if you want, we'll pick HDFC. We'll pick a random date. चलो यही ले लेते हैं. या कोई और डेट ले. कोई डेट, guys? Anyone? Give me a date. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फेब, मार्च, कुछ भी. Come on, guys, give me a date. Sir, Anyone? April 15th. 15th अप्रैल कर लेते हैं. तो देखो अब ये चार्ट जब स्टार्ट होगा, यहाँ पे जब हो, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा यहाँ पे? क्लियर है ये तो, इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. क्लियरली हमें दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, राइट? यहाँ इसमें किसी को डाउट है कि डाउन ट्रेंड में है? नहीं सर, बस लोअर कैंडल बनेगी तो वी कैन गो शॉर्ट इसमें. ठीक है. और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दिख रही है. क्या दिख रही है? कैन एनीवन टेल मी? सर गैप डाउन को फॉलो थ्रू मिला है. हाँ, करेक्ट. बट और भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आज ही हमने डिस्कस की. सी, देयर इज अ टाइट ट्रेडिंग रेंज, राइट? दिस इज वेरी टाइट ट्रेडिंग रेंज. इसमें आप कहीं पर भी लॉन्ग जाके पैसा बना ही नहीं सकते, करेक्ट? दिस इज अ वेरी टाइट ट्रेडिंग रेंज. सेकंड चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पर? टाइट ट्रेडिंग रेंज के बाद जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, sideways, which showed there is not enough bulls having so much power that they can break out and take it higher. And you saw this meltdown. Again, a similar thing is happening. Tight trading range, breakout but sideways. मतलब breakout हुआ, follow through नहीं है. तो still you will look to short. Where you will look to short? On a signal candle. This is your signal candle. इसके नीचे जाएगा, सेल करना है. यहाँ पे आपको सेल ट्रेड मिलेगा. यहाँ पे आप सेल हो गए हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या होता है आगे. क्लियर कट शॉर्ट, कंटिन्यू रहो, कोई टेंशन नहीं है अभी तो. कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग. अभी भी होल्ड करना है, होल्ड करो. अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे. इतने बड़े फॉल के बाद वापस जब ये बना, ये क्या हो रहा है? ये मोस्टली आपको एक ट्रायंगल बनेगा. ये 1 2 3 4 5 टाइप का यहाँ पे बनेगा, ठीक है? एंड ऑफ द ट्रेंड ऑलमोस्ट लग रहा है क्योंकि काफी टाइम से ट्रेड चल रहा है. So might be end of it, and then again there should be a fall below this. ये जो आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए और उसके नीचे फॉल होना.
होगा तो यू विल टेक शॉर्ट. लेट्स सी क्या बनता है. करेक्ट. देखो हॉरिजॉन्टल बना. अब देखो ये विजुअलाइज करना होता है. ये पता मुझे पहले से कैसे था, बिकॉज आई नो कि ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ये क्या बात है, 1000 चार्ट देखोगे 50 दिन बैठ के दिन रात, तब जाके आएगा. थ्योरी पता होनी चाहिए, बट देन वंस यू स्टार्ट practicing, the more you practice, you'll be able to visualize. So now this is my support area. If there is a breakout, I will buy the follow through of the breakout. Sorry, sell the follow through of the breakout. So I'm still short. I can add. If I am not short already, I'll go short again. ठीक है. अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आया तुरंत ऊपर आ गया, मतलब कि इस getting into some kind of range, but the selling pressure is so high, you can see that the range is still downward. So now you have to visualize that this is starting to look like something like this. Is it something like this which is going to happen? And eventually then uptrend, or again a bigger fall. Two things can happen. Either this will break on a bigger uptrend or a fall. Let's see now what happens. So this is my thinking now. So still I'm holding my shorts because I have this thinking. Now क्या हुआ, ये ब्रेकआउट जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था ये यहीं पे आ गया, बट ये क्या हुआ, ऊपर गया. अब इसको डिलीट करो, ये थिंकिंग नहीं है. अब क्या हुआ, ऊपर गया, डबल टॉप बनाया रेड. अब अगर इसके ऊपर जाता है देन इट बिकम्स 1 2 3 एंड आई शुड एग्जिट. सो माय स्टॉप लॉस नाउ इज हियर. हमने कहाँ पे शॉर्ट किया था, समवेयर हियर. वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट. यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है. We are still short. See, this is how you have to trade. See the amount of money you can make. आएगा इस समझ में. दिन खत्म, ट्रेड खत्म. देख रहे हो कितना सिंपल है. अब ये देखो ना, मैंने इसमें RSI यूज किया ना, वॉल्यूम, कुछ नहीं, सिंपल. एनी क्वेरीज, एनीवन? समझ आया ये सबको, या कोई डाउट है किसी को एंट्रीज में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में? सर उसमें जो आप 1 2 3 करके सर स्ट्रक्चर बना रहे हो, या 1 2 3 4 5, सर वो थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब मुझे. हाउ डू आई गो अबाउट दैट? हाँ सर, वही पूछ रहा था मैं. 1 2 3 क्लियर नहीं है. देखो सर मतलब जैसे लाइन यहाँ में पे कैसे चलो, आइडेंटिफाई? मैं बता रहा हूँ. Yes. ये देख लो. अब ये कितने, ये कैसे पता चलेगा ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, क्या है? पहला पुश, पहला पुल बैक है ना, पहला ये 1, पहला अटेम्प्ट टू रिवर्स दिस इज डाउन ट्रेंड. इस कैंडल के बाद ये पहला है अप ट्रेंड 1. ये दूसरी बार कोशिश पूरा 2. ये तीसरी बार कोशिश पूरा 3. ये चौथी बार कोशिश 4. अब 4 तो होता नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये 1 2 3 एक लेग है, और ये 1 2 3 एक लेग है, और ये सब मिला के आपका पूरा एक बड़ा 1 2 3 है. आया समझ में? थोड़ा और बड़ा करके वैसे समझाता हूँ मैं. This is first attempt up 1. This is second attempt up 2. This is third attempt up 3. This is fourth attempt up 4. ठीक है, ये समझा? यस सर. Yes, sir. अब 4 तो होते नहीं है, मतलब दिस शुड इधर लुक लाइक 1 2 3 और 1 2 3 4 5. ठीक है, और ये 4 है. तो अब ये तो फिर मतलब क्या फॉलो. होगा कि ये पूरा आपका जो है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है. सॉरी, ये पूरा आपका ये 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 1 2 3 आपका 2 हो गया, और ये 3. ठीक है, कलर अलग करते हैं. ये पूरा 1, ये पूरा 2, ये पूरा 3,
ठीक है। सर साइडवेज या कंसोलिडेशन में हमेशा ऐसा ही कुछ बनता है क्या? करेक्ट, हमेशा ऐसा ही होगा। वही तीन जो मैंने अभी बताए, या तो आपका पुल बैक विल बी 1 2 3 लाइक दिस, या तो आपका पुल बैक विल बी इन राइजिंग वेज जिसके 3 पुशेस अप एंड डाउन होते हैं, या आपका जो पुल बैक होगा ट्रायंगल होगा, and then a breakout in whatever direction। ठीक है, आया समझ में ये? अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यू विल नेवर गेट इन एनी बुक, प्लीज नोट इट डाउन। जब भी ये पुल बैक्स होते हैं, यूजुअली इसमें नहीं, मोस्टली इसमें और इसमें, हम क्या बोलते हैं हमेशा कि मार्केट अगर ट्रेंड में है तो अगर कोई पुल बैक होता है तो यूजुअली इट विल गो अप after that, right? It will continue the trend. But one thing is very important here. If the length of this pullback is more than 20 candles, then the probability of the market continuing the trend or reversing are equal. ठीक है? If this length is more than 20 candles, whatever time frame you are using, then the probability of market continuing the trend is equal to reversing. If this trend is less than 20, यूजुअली ये मेरा 5 मिनट चार्ट से मेरा एक्सपीरियंस आया है, मतलब 1 घंटे के चार्ट में अगर वो वापस कंटिन्यू हो गया, इफ इट इज लेस देन 20, देन द चांसेस आर मोर इट विल कंटिन्यू द ट्रेंड। कहने का मतलब ये, द लॉन्गर द पुल बैक बिकम्स, द चांसेस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूइंग बिकम्स लेसर एंड लेसर, एंड देन एट अ टाइम it reaches 50%. It doesn't go ever below 50%. ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, सो चलो गाइस खत्म करते हैं। हाँ, ओके, दिस ग्रुप विल रिमेन एक्टिव फॉर अ मंथ। ओके, दिस प्राइस एक्शन वॉल्यूम 2 ग्रुप, डू दीज थिंग्स। ट्रेडिंग व्यू का ये सब्सक्रिप्शन लेके प्रोफेशनल वाला जो भी है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो और सवाल आएंगे, और जब सवाल आएंगे ग्रुप में पोस्ट करो, आई विल गिव यू गाइस आंसर। तो 1 महीने डू ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग इन द मार्केट यूजिंग दीज कंसेप्ट्स, बोथ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। बार बार इसको रिवाइज करो। 1 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करो, एक्सेल शीट बनाओ जिसमें लिखो इस दिन ये ट्रेड इतने पे एंटर किया, रिस्क इतना था, इसलिए मैंने इतना क्वांटिटी लिया। सो फर्स्ट सिट एंड इवैल्यूएट कि मैं अपना इतना कैपिटल जुगाड़ सकता हूँ। अब ये नहीं कि कुछ लोग अनरियलिस्टिकली बैठ के करना, कह रहे मेरे पास 20 लाख कैपिटल से मैं ट्रेडिंग। 20 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो 20 लाख मत डालना। मानो अगर तुम 2 लाख से ट्रेडिंग कल स्टार्ट कर सकते हो तो लिखो कि मेरा 2 लाख कैपिटल है। अगर 2 लाख कैपिटल है तो मतलब मैं इतना क्वांटिटी ऑप्शन ट्रेड करूंगा, इतना क्वांटिटी फ्यूचर, ये रिस्क रहेगा। डू दिस एक्सरसाइज फॉर 1 मंथ ऑन डिफरेंट स्टॉक्स, इंडेक्स, ठीक है, एंड आस्क मी क्वेश्चंस and I'll give you answers if there are any doubts. Sir. Yeah. Buying or selling pressure? This is buying and selling pressure यार। ये strong trend है, higher selling pressure है downward direction में, that is it। ठीक है, चलो guys, any questions anyone has? Recording I'll upload on the website and all of you will have access to it। ठीक है, Okay। Great। चलो guys, thank you, enjoy, and 1 महीने करो practice and then give me a feedback on whether कोई फायदा हुआ या नहीं। ठीक है, I'm very happy with the people who had done price action volume 1. They are very happy with it, so I would like them to also tell me कि आगे क्या हुआ, इसका कोई value addition हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलो guys, bye bye। Thank you sir, thank you sir, thank you, thank you, Thank you। bye bye everyone। bye sir। Thank you। Bye।